Father God, we thank you, Lord Jesus, for this time, Lord Father. We surrender this time into your hands, Lord Father. We have come here together to worship you and you alone, Jesus. Lord, I pray, Lord, I surrender this place, this house into your hands, Lord. As people enter through those doors, Lord, may they be touched by you, Lord, and let your spirit move in this place, Lord Jesus. Let him do what he can only do, Lord Jesus. Lord, as we go on with this service, Lord, with this evening, we expect miracles and breakthroughs to happen today, Lord Jesus. We want to see your hand. We want to see your power, Lord Jesus, today work, Lord. Thank you, Lord Father, for each and everything, Lord, that is placed right here today, Lord. That it all together may just glorify your name, Father. We thank you, Lord Jesus. I pray, Lord, I bind every spirit that is trying to interfere and disturb the environment. I pray we cover ourselves in the precious blood of Jesus Christ. We speak the presence of the Lord and presence of heaven to be here, Lord. We thank you, Lord Jesus. We rebuke and we declare, we denounce the enemy and his power, Lord Jesus. We are the children of the Most High God, and when we come together, you said that you are present, Lord. You said that when 2 or 3 are gathered in my name, there I will be. Lord, we believe that your presence is here in this house, Lord Jesus. And where you are, Lord, there is no place for darkness. There is no place for the devil to stand, Lord. So we come here, Lord, and we worship your name, Jesus. We want to lift your name higher, Lord Father. We want to glorify you, Lord Jesus, and we want to praise you, Lord Father, for the works that you have done, Lord, for that you have brought us out of darkness and into your eternal light, Lord. We thank you, Lord. We surrender the time that is yet to come, Lord, into your hands. I pray, Lord Jesus, that we may expect great things today, Lord. Amen. Those who are coming sick, they may go with a healed body, Lord Jesus. Amen. Lord, Amen. we pray, Lord, for your divine healing to touch each and every one of us today, Lord Father. We surrender everything into your hands, Lord. Yes, even as we sing, Lord, let our voices, let our worship be a pleasing aroma to you, Lord Jesus. Yes, Lord, I pray, Lord, as we come, Lord, as we, if there is any uncleanliness in our hearts, Lord, I pray that you may help, you may forgive us, Lord Jesus. I pray, Lord, that we may come in unity and worship you, Jesus. Amen. I pray, Lord Father, and I pray in your precious name, Jesus Christ. Amen. 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 Lord Jesus, we lay this time into your hand, Father, as we have come together to worship you, to give you glory, Father. We are starting this worship from church from today, Lord Jesus. Lord Jesus, let everything go well, Father, Lord, even the worship, the word, and the people who are coming, Father, Lord, protect them, Father. Yes, Lord, the more and more people would come, Father, Lord Jesus. And all these people who come, Lord, they will be touched, Father, by your word. Bless them, Lord Jesus. Lord, bless them, Father, Lord, help them, Jesus. Even the song and the word, everything would be really powerful, Father, Lord Jesus. We give everything in your hand, Father, Lord. Bless all the people, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord, that you took care of us in all this trouble and everything, God, that you are there for us, Father, Lord. Thank you, Father, for your mercy and for your love, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord, church. Praise the हमें Lord. बहुत आनंद है कि हम फिर से एक बार आपसे ऑनलाइन सभा में मिले हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और आराधना करें। धन्य है वो प्रभु का नाम जिसे सारी स्तुति और सारे योग्य है। धन्य है प्रभु का नाम है महान। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़कर सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़कर हम सुरक्षित है। प्रभु का नाम, धन्य है 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 प्रभु का नाम है महान।
है। आमीन। तो आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमें इस समय यहाँ पर रखा है प्रभु, आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए। एक नया अवसर प्रभु आपने दिया है ताकि हम अपना सारा काम छोड़कर प्रभु आपके उपस्थिति में आए प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें यह एक अनमोल मौका दिया है पिता परमेश्वर, जहाँ सब लोग प्रभु इस दुनिया में कहीं ना कहीं बाहर है, अपना संडे कुछ अलग तरीके से बिता रहे हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है और प्रभु इस स्थान पर लाया है, क्योंकि आप हमारे जीवन में चमत्कार करने वाले हो प्रभु। हम जो चीज पर आज खड़े हैं प्रभु, वहां से प्रभु जी एक नए पड़ाव पर हम आगे पार पड़ने वाले हैं, उसके लिए आप हमारी मदद और सहायता करेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु, मैं आपको आदर करती हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा करती हूँ, हमारे पूरे हृदय से प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that I within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Yes, Lord, have your way in me, O Lord Jesus. For the word of God says, your ways are higher than mine, O Lord Jesus. पवित्र बाइबल कहता है कि आपकी योजना हमारे लिए हमारी सोच से बढ़कर है प्रभु। हमारा हृदय प्रभु जी, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा आपकी स्तुति करे प्रभु। हमारे
आपकी वजह से है प्रभु। और आपने हमें उस योग्य समझा है प्रभु कि आपने सारी आशीषें हमारे जीवन में रखी है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु। तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा मजबूत गढ़ है। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आदर और महिमा सिर्फ तुझे हो प्रभु, स्तुति और प्रशंसा सिर्फ तेरी हो प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु उस योग्य कोई नहीं प्रभु, क्योंकि आप जिंदा खुदा हो प्रभु। आप हमें हर दिन हम पर नजर रखते हो और हमारे मांगने से पहले हमें हमारी सारी चीजें मिल जाती है प्रभु। आपका आशीष का हाथ हम सब पर है प्रभु। स्तुति और प्रशंसा तेरी हो प्रभु, आदर और महिमा तुझे मिले पिता परमेश्वर। हम फिर से कहते हैं प्रभु कोई और उस योग्य नहीं प्रभु, उस स्तुति के योग्य नहीं जो आपको जाता है पिता परमेश्वर। हम जो सोचते हैं प्रभु कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो आप करके दिखाते हो प्रभु। आप हमारी हिम्मत बनते हो प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हो प्रभु। आपने हमें चुना है प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप इस स्तुति के योग्य हो। धन्यवाद यीशु। आगे का समय जो है प्रभु, जो वचन हमारे पर आने वाला है प्रभु, हमारा हृदय, हमारे कान प्रभु उसी की ओर लगे रहे प्रभु, क्योंकि उसी में हमारा छुटकारा है प्रभु। उसे हमें स्वीकार करने जैसा हृदय प्रभु जी स्वच्छ रखे प्रभु।
के लिए होगा प्रभु, और हमारे जीवन बदलने का कारण भी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आगे जैसे पास्टर वर्ड शेयर करेंगे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा के हाथों में सब सौंपती हूँ प्रभु, क्योंकि आप जानते हो कि हम में से किस चीज को किसकी जरूरत है प्रभु, और वो हम तक जरूर पहुंचेगी। आपका वचन इतना शक्तिशाली है कि वो हमारे जीवन के लिए काफी है प्रभु। आपने कहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें प्रभु जी आपकी ओर खटखटाना है प्रभु, और सारे द्वार जो हमें लग रहे हैं कि बंद है प्रभु, वो खुल जाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। आज हम यहाँ पर आए हैं प्रभु, और हम जरूर अपने जीवन के लिए यहाँ से कुछ लेकर जाए प्रभु, और हम जो अपने जीवन में चमत्कार पाते हैं, हमें वो दूसरों से बांटने के लिए मदद करना प्रभु, ताकि वो भी प्रभु जी एक गवाह बने उस सच्चे खुदा के प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम उस रोटी और प्याले के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जैसे वचन कहता है प्रभु, आपका शरीर जो रोटी दर्शाता है प्रभु, और ये प्याला जो आपका लहू दर्शाता है, वो हमारे लिए प्रभु आपकी शरीर तोड़ी गई और लहू हमारे लिए मारा गया है प्रभु। आपने हमें उस अमूल्य लहू से खरीदा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हो पिता इस शरीर प्रभु और उस लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए प्रभु जी आपने अपनी कुर्बानी उस क्रूस पर दी है प्रभु। उस दिन को प्रभु हम याद करते समय रोटी और प्याले में सहभाग होंगे पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को प्रभु जी हमें जांचने में मदद करिए प्रभु, एक साफ हृदय से उसे स्वीकार करके प्रभु जी हमें आगे बढ़ने का प्रभु जी इसकी मदद और सहायता करें। जैसे हम इस रोटी में और प्याले में भाग लेंगे पिता परमेश्वर, हमें वो दिन हमेशा याद आता है जिस समय प्रभु जी आपने किसी की नहीं सोची परंतु हमारे बारे में सोचा, हमारे पापों का प्रभु जी सोचा प्रभु, और आपने उसे क्रूस पर प्रभु जी बताया। हम उस योग्य नहीं थे प्रभु, पर आप प्रभु जी क्रूस पर गए हमारे लिए प्रभु, ताकि आप में हम योग्य कहलाने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से कीमती
Father God, we thank you, Lord, for this time, Lord. We surrender this time into your hands, Lord. We believe that your presence is here, Lord Jesus. We thank you, Lord. We surrender this time into your hands, Lord. Lord, we thank you for the offering that has been taking place, Lord. I pray, Lord, that you may bless it, Lord. Those who are going to put, Lord, you bless them according to your will, Lord. I pray, Lord, as they sow, as they put their seed, Lord, I pray, Lord, that you may bless them 100-fold back, Lord, Father. Lord, wherever they work, Lord, we speak promotions in their workplace, Lord, Father. We speak increase of payments in their workplace, Lord Jesus. I pray, Lord, wherever they put their hands, that place may be blessed, Lord Jesus. I pray, Lord, that whoever puts them, they are putting it not in this box, but they are putting it in your kingdom, Lord Jesus. Amen. And let this, whatever is collected, Lord, let this be used for your kingdom, Lord Jesus. I pray, Lord, in your precious name, Jesus. Amen. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराची उपकार स्तुती असो. नोव्हेंबरमध्ये मी माझं रुटीन ब्लड चेकअप केल्यानंतर माझा असा रिपोर्ट आला की माझं किडनी फंक्शन लो झालेलं आहे आणि माझी 25% किडनी डॅमेज झाली असं मला सांगण्यात आलं. त्यानंतर मी घरी आल्यानंतर ताबडतोब सिस्टरने मला फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की माझे असे रिपोर्ट आलेले आहेत. तेव्हा त्यांनी सांगितलं तुम्ही घाबरू नका, तुम्ही घरी या, आपण प्रार्थना करूया. त्याच्यानंतर मी आणि दिनेश आम्ही त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी पास्टर इडविन, सिस्टर विल्मा यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली आणि परमेश्वराच्या दयेने मी त्या पूर्णपणे निश्चिंत झाले. त्यानंतर जानेवारीमध्ये जेव्हा मी अहमदनगर येथे एका फंक्शनसाठी गेले तेव्हा आमच्या काकूने असं सजेस्ट केलं की आपण पुन्हा सगळं चेकअप करून घेऊया, सेकंड ओपिनियन घेऊया. त्याच्यानंतर मग पुन्हा सगळं चेकअप केल्यानंतर परमेश्वराच्या दयेने माझे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आले. डॉक्टरने सांगितलं की तुमची किडनी पूर्णपणे स्वस्थ आहे. परमेश्वराची उपकार स्तुती असो. सारी महिमा आता आणि युगानुयुग परमेश्वराला असो. आमीन. Has made all of us. और उसने हम सबको बनाया. That's why all our blood is red only. It's इसलिए not, हम सबका जो खून है वो लाली है. we are not divided by race, color or religion. और इसीलिए जो है किसी जाति या भाषा या धर्म की वजह से जो लोग अलग अलग नहीं हैं. That's why we are made in the image of God. क्योंकि सारी जो मानव जाति परमेश्वर के स्वरूप में जो बनाई गई है. So we need to enjoy the things that come from God. और इसलिए परमेश्वर की ओर से जो भी आता है आशीष वो सारे जो मानव जाति के लिए उपलब्ध है. The one who made us is the one who can repair us. और जिसने हमारी रचना की है, अगर हमें कोई खराबी होती है तो उसकी रिपेयरिंग भी वही कर सकता है. Like if a car gets spoiled, you go to the garage. जैसे एक जो गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो उसको हम गैराज में लेके जाते If you हैं. got a Samsung mobile, you take it to a Samsung dealer. अगर सैमसंग का मोबाइल खराब हो Service जाता center. है तो सैमसंग का जो सर्विस सेंटर है उसमें ही जाकर हम उसको देते हैं. And if the part is spoiled, then they replace it. और अगर उसका जो भाग अगर खराब हो गया है तो वो उसको जो है जो नया उसमें जो डालते हैं. So today we need to go to the one who made us. और इसीलिए अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो जिसने हमको रचाया है
उसी के पास जाना है सारी चीजों के लिए जो हमें चाहिए। Many a times we go to the wrong person. लेकिन कभी कभी हम गलत जो व्यक्ति के पास जाते हैं जो मरम्मत कराने के लिए, And they try to repair something and something else happens. और उसको अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो वो उसको चीज को और खराब करके वापस दे देता But है। when we go to the manufacturer, he knows how he made us. लेकिन हमारा जो बनाने वाले के पास जब हम जाएंगे तो वो हमारा जो मरम्मत ठीक से करता है, क्योंकि उसने हमको बनाया, उसको मालूम है कि हमारे अंदर सारी चीजें अच्छी कैसे रहेगी। So we have come here because we have to praise our God. इसलिए हम यहाँ सभी यहाँ पर आए क्योंकि हम सभी हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, उसको सारी महिमा देना चाहते हैं। Whether we know it or we do not know, we are made in His image, after His likeness. और चाहे मनुष्य को ये ज्ञान हो या न हो, लेकिन सारे मनुष्य को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में ही जो बनाया है। Today I'll be speaking from Luke 15. इसलिए आज हम लूका का 15वां अध्याय से, जो बाइबल में से लूका 15 में देखेंगे। It is a very simple passage, very simple story. बहुत ही साधारण जो कहानी है, जो हम जो पढ़ के जो समझ पाए। When it is simple, we take it for granted. कोई चीज अगर जो बहुत ही जो साधारण होती है तो हम चीजों को हल्की रीति से ले लेते हैं। You know, sometimes husbands they take their wife for granted जैसे कुछ जो पति जो है अपनी पत्नी को हल्की रीति से ले लेते हैं। because wives they cook and they hardly do anything at home. We feel. क्योंकि जो कुछ जो पतियों को ऐसा लगता है कि जो पत्नी घर पर ही है तो घर का खाना पकाएगी और क्या कर सकती है घर पे, और कुछ नहीं करती। Just a few days back, I was watching a small short a film on National Women Day. कुछ समय पहले जो है जो स्त्रियों के दिन का एक जो प्रोग्राम हम जो देख रहे थे, And this lady, she got up early in the morning and she was doing all the work. और ये स्त्री जो है सुबह जो उठती है और उसका पूरा जो घर का काम शुरू होता है सुबह सुबह। And she was making the breakfast, सुबह उठ के फिर सबके लिए जो नाश्ता बनाना, getting the children ready, जो बच्चों को तैयार करना स्कूल के लिए, separate good breakfast for the husband because he has to get strong. पति के लिए अलग सा जो भोजन क्योंकि उसको जो ताकतवर बनाना है। And the husband goes down. और फिर जो पति जो काम के लिए घर से निकलता है, At one side she's feeding them breakfast. एक साइड में वो जो मेज पे छोटे जो बच्चे हैं उनको खाना खिला रही है। And this man, he forgets the scooter keys. और जो पति नीचे जाकर उसको याद आता है कि स्कूटर की चाबी भूल गया, And he shouts her name. और वो नीचे से चिल्ला रहा है उसको। So she runs, leaving here. The children go to the balcony. तो बच्चों का जो ब्रेकफास्ट छोड़ के वो जो बालकनी में जाती है चाबी के साथ। And he says, I've left my keys. तो वो कहता है मैं चाबी भूल गया, तो वो चाबी लेके नीचे फेंक देती So she takes and throws the keys down and comes back to the children. और फिर चाबी उसको देने के बाद, फेंक देने के बाद, जो खिड़की से फेंकने के बाद वो वापस जो बच्चों के पास आकर उनको जल्दी जल्दी से जो नाश्ता खिला रही है। And suddenly the school alarm rings. और फिर जो है स्कूल का जो अलार्म जो बज रहा है, So she takes their bag and everything and rushes. तो उनका जो स्कूल बैग लेके उनको उनका हाथ पकड़कर जल्दी से वो भाग रहे हैं, Because they miss the school bus. क्योंकि नहीं तो स्कूल का बस जो मिस हो जाएगा। Then she has to come back home. फिर जल्दी से दौड़कर वापस आना घर Then she पे। has to press the father-in-law's legs. फिर जो ससुर के पैर को दबाना है, जो Then मसाज करना है, and the medicines have to be given to the mother-in-law, something like that it was और going on. फिर जो सास को जो दवाइयाँ देनी है, So then in the middle, again she has to cut some vegetables, get the cooking things ready. और फिर जो है दोपहर के खाने की तैयारी और पूरे दूसरे काम में लगी है। And night again food. फिर वो रात का खाना अलग से, And she was also doing side by side some makeup business and collecting some money. और अलग से जो पार्लर का काम भी जो एक घर से कर रही थी, तो वो अलग सा जो पैसा थोड़ा थोड़ा करके वो भी जो जमा कर रही थी। At that time I remembered Prema because of this. उस समय प्रेमा का याद आया क्योंकि वो भी करती है। But in all these things, one fine day, she was very tired. ये करते करते रोज जैसे जो दिन जो बीतते गए, एक दिन सच में वो उसको लगा कि मैं थक गई। And in the night, when the husband was sitting on his laptop, और एक दिन रात को जब पति घर में आने के बाद जो रात को
लैपटॉप पे बैठा था। She said, I need a break. तो उसने कहा कि मुझे ब्रेक So चाहिए। he says, क्या break? What break? तो वो कहता है तुमको कौन सा ब्रेक चाहिए? He said, 1 महीने का छुट्टी. So he was like shocked. He said, but why? तो उसको धक्का लगा कि तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? So he said, don't worry. To go for my vacation, I also collected money, so I don't need money from you. तो वो जब कुछ कहने जाता है तो वो कहती है कि तुम्हें जो है मेरे खर्चे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने जो पार्लर का काम जो भी किया उससे थोड़ा थोड़ा बचाया, वही जो पैसे से मैं जाकर आऊंगी। So she said, so next morning she was in the kitchen. तो अगले सुबह वो जो रसोई घर में थी, So the husband went in the kitchen तो वो किचन में गया। and asked, really you're going? तो उसने पूछा सच में तुम जा रही हो क्या? He's saying, don't worry, I already booked the flight ticket also. तो उसने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे हवाई जहाज का टिकट मैंने जो बुक किया So है। quietly he left the kitchen and went to the children. तो उदास होके वो वापस जो बच्चों के पास गया And the children also came to know about she was going. और जो बच्चों को भी और घर में सारे लोगों को पता चला कि वो जा रही So है। the children are asking the father, who will make us breakfast now? तो बच्चे जो पिता को पूछ रहे हैं हमारा जो नाश्ता कौन बनाएगा? The mother-in-law is saying, who will give me malish? तो सास ससुर पूछ रहे हैं फिर हमारा काम कौन करेगा, जो मालिश कौन करेगा? The father-in-law is saying, who will give me the medicines? और फिर जो दवाइयाँ कौन देगा? So they're all thinking now what is to be done. और घर के सारे सदस्य सोच रहे हैं कि ये सब काम अब कौन करेगा? So it was only for 1 month. लेकिन उसने कहा 1 ही महीने के लिए। And who will take the children's studies? और जो बच्चों की पढ़ाई भी तो लेनी है। So the husband came out with a plan. तो जो पति को एक आइडिया आया, He said, best thing we will keep one lady. तो उसने सोचा Different for different works. कि एक जो काम के लिए एक जो व्यक्ति को रखेंगे, 1 महीने की बात है। So he calculated this 4,000 rupees. तो उसने जो है जो गिनती शुरू किया कि इस काम के लिए इतने जो पैसे लगेंगे, For teaching the children 3,000 rupees. बच्चों के वो जो पढ़ाने के लिए इतना 1000 जाएगा। And he counting it came to 27,000 rupees. और फिर जो है 27,000 आ गया खाली वो 1 महीने का खर्चा जो एक व्यक्ति को जो हायर कर रहे हैं उनको जो देने के लिए। And they felt that she was not doing anything. I mean, they take their wife for granted. और फिर अचानक से जो पति के जो ध्यान में आया कि इतना सारा जो पैसा जाएगा ये 1 महीने के लिए ही है जो वो छुट्टी पे जा रही है, और इतना जो है एक्चुअली हम जो बचा रहे थे क्योंकि वो सब कुछ ये जो कर रही थी घर And they had a family meeting. और फिर जो पारिवारिक जो है वो लोग ने जो मीटिंग रखा। Are you really going? फिर से पूछा क्या सच में जा रही I है? am going. तो उसने कहा हाँ मैंने जो तय किया है 1 महीना मैं जाके आऊंगी। And they were really tensed. तो बहुत ही टेंशन में आए, But what happened? She left. लेकिन वो चली गई अपने फ्लाइट के हिसाब से And टाइमिंग से। then he had to make the breakfast. फिर सुबह में उसको जो नाश्ता की तैयारी करनी पड़ी Because they couldn't spend that 28,000 rupees. क्योंकि वो सारा खर्चा तो बहुत आ रहा था 1 महीने का। And take them to the school. फिर उनको स्कूल में जो लेके जाना। But in that short film, he was going the wrong way and they said, Papa, ये रास्ता नहीं है, वो रास्ता है. स्कूल की बस कौन सी रास्ता था वो भी उसे नहीं जो पता था, तो बच्चों ने कहा कि वो रास्ता नहीं ये रास्ता, पापा चलो इधर भाग के चलो। So, the very first day he got the experience. तो पहले ही दिन उसको अनुभव हुआ कि ये सब रोज होता आ रहा है। And on the first day, she also was leaving, but she said, no, I'm going back. लेकिन जो है वो जो निकल गई थी थोड़े समय बाद वो वापस आती है घर, It was a very touching video और बहुत ही जो है हृदय को छूने वाला ऐसा कहानी था that we need to respect the woman and we need to respect each other. कि हमें स्त्रियों का आदर करना है और एक दूसरे का भी आदर करना बहुत जरूरी है। And we think that they don't do anything. क्योंकि हम सोचते हैं कि जो सामने वाला है वो ज्यादा नहीं कर रहा। Why I am saying all this? क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ? Because there is a God who loves us and we feel that He is not doing for us anything. एक परमेश्वर है जो हमसे बहुत ही जो प्यार करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। And we have ignored God in all senses.
और हम परमेश्वर को हर चीज में याद नहीं करते हैं कि वो सारी चीजें एक्चुअली कर रहे हैं हमारे For जीवन में। God so loved the world और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्यार किया that He gave His only begotten Son, कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया, that whosoever believes in Him ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे shall not perish but have eternal life. उसका नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन उसको मिलेगा। Today we have a good time to come together and praise our God. आज फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबको जो मौका दिया है मिलने के लिए उसकी उपस्थिति में और उसकी आशीषों को पाने के So लिए। from Luke 15, तो अब हम आएंगे लूका 15 अध्याय। I will just read the story. इस कहानी को हम जो पढ़ेंगे, Good, there are children also can hear the story. बच्चे भी हैं तो सुन सकते हैं। Then all the tax collectors and sinners drew near to him to hear Jesus. सब चुंगे लेने वाले और जो पापी उसके पास आए और उसकी बातों को सुनने लगे। And the Pharisees and the scribes complained, saying, "This man receives sinners and eats with them." और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से जो मिलता है और उनके साथ खाना खाता है। So he spoke this parable to them, saying, तब उसने यह दृष्टांत कहा, "What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it?" तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे? And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. और जब वो मिल जाती है तब वह जो बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है। And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost." और घर में आकर जो मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे जो मिल गई है। I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। This is a short story about the lost sheep. ये जो कहानी है खोए हुए जो भेड़ के बारे में। Jesus is telling this story there to the tax collectors who did not want him to sit with sinners. और जो है यीशु ये कहानी कह रहे हैं, ये जो है यीशु के बारे में जो पापियों के साथ और चुंगी लेने वाले ऐसे लोगों के साथ खाना खाता था, उनके साथ संपर्क रख रहा था। Because Jesus has come to save sinners. क्यों ऐसा यीशु ने किया? क्योंकि यीशु धरती पे ही आए जो पापियों के लिए, उनको जो बचाने के लिए, उनके लिए ही तो यीशु आए थे धरती। You know the sick needs a physician. जैसे कि जो बीमार है उनको ही जो डॉक्टर की जरूरत है। That's why I started by saying if your car is spoiled, you need the garage. और इसलिए हमने कहा कि जब हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम उसको जो गैरेज में ले जाते हैं ठीक कराने। When we are drowned in sin, we need someone to help us out. उसी प्रकार से हम जो पाप में जो है डूब रहे थे, तब जो है हमको जो बचाने के लिए कोई चाहिए था। In this dark world, we are drowned in all kinds of issues. और इस अंधेरे जगत में जो है अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के जो परिस्थिति में फंसे हुए हैं। There are family issues. कुछ लोगों को जो पारिवारिक समस्याएं हैं, There are work issues. कुछ लोगों को काम की जगह की जो परेशानियां हैं, There is physical issues. या फिर शरीर में कोई प्रॉब्लम है। All different kinds of issues, different kinds of people have. अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का जो परेशानी होती है। And here Jesus is with sinners. He is listening to what they are saying. He is eating with them. और लिखा गया है कि यीशु सारे ऐसे लोगों के साथ बैठकर उनके साथ जो बातचीत करता है। And these are tax collectors. The tax collectors at that time were like cheaters. और उन दिनों में चुंगी लेने वाले मतलब ऐसे लोग सोचते थे ये तो चोर जैसे हैं। And Jesus is with that group. और यीशु ऐसे लोगों के साथ जो बैठकर जो है भोजन कर रहा है। And the Pharisees and the scribes are from the temple side.
और इसलिए जो फरीसी और जो शास्त्री लोग हैं, जो मंदिर से आते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये देखो किन लोगों के साथ वो बैठता है। So they created a caste system. तो उन्होंने ऐसे जैसे एक जो फर्क ठहराया कि हमको देखो, हम ऐसे लोगों के साथ जो है जो संपर्क नहीं रख रहे, लेकिन यीशु ऐसे लोगों से मिल रहा है। But even the tax collectors, they all were made in the image of God, but they were lost. असल में ये जो चुंगी लेने वाले या जो पापी जो लिखा है, ये सारे लोग एक्चुअली भटके हुए लोग हैं, इसलिए यीशु उनके पास जाते हैं। There was a time even I was lost. ऐसा जो समय था जब मैं भी खोया हुआ था, But someone had to come. लेकिन किसी को आना था मेरे जीवन में, And the one who came and saved me permanently was only Jesus. और एक ही जो व्यक्ति था जो मुझे जो बचा सकता था अंधेरेपन से, और वो है यीशु। We were in different kinds of problems and different situations, especially when you have no money. खास करके जब जो काफी जो पैसे नहीं होते हैं हाथ में, तो और ज्यादा जो परेशानी होती है जीवन में। We tried all kinds of things. और जो परिवार ने अलग अलग चीजें करने की कोशिश की, We were losing out of so many kinds of options. और जो है सब कुछ कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तो हम जब परेशान हो रहे थे। But I know the day that when I encountered Jesus, that something changed my life. लेकिन जिस दिन मेरा अनुभव यीशु के साथ हुआ, उस दिन से मेरा जीवन पूरा जो बदल गया। Not only I am blessed, और आशीषित सिर्फ मैं ही नहीं हुआ, but when I speak God's word, I know that people will be blessed. मैं जानता हूँ मेरे अनुभव से कि जब लोग परमेश्वर के जो वाणी को सुनते हैं, यीशु का अनुभव करते हैं, तो उनका जीवन भी ऐसे ही जो बदलता है। I know that when I pray over people, they will be blessed. और हम जानते हैं कि हम जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आशीषित होते हैं। But the blessing only comes from source God. लेकिन वो सारा आशीष परमेश्वर की ओर से ही आता है। I am only used as a tap. मैं सिर्फ एक जो नल की तरह हूँ। But the water comes only from Him. लेकिन जो नल का पानी तो ऊपर से आता है। The goodness of God only comes from Him. क्योंकि भलाई जो परमेश्वर की ओर से आती है, वो ऊपर से ही आती है। Man is there today, tomorrow man is not there. क्योंकि जो मनुष्य है, जो नल है, वो आज होगा कल नहीं होगा। But God is there forever and ever and ever and ever and ever and ever. लेकिन परमेश्वर सदा के लिए होता है, हमेशा। Meeting will be there today, meeting may not be there tomorrow. मीटिंग शायद आज हम रखेंगे, शायद जो कल नहीं रख पाएंगे। But the kingdom of God is for everlasting. लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत काल के लिए है। You know, our sister was singing a song about asking, seeking, knocking. जैसे हमारी सिस्टर जो गीत गा रही थी कि हमको खटखटाना चाहिए थे, और वो कह रही थी कि हमको जो है बुलाना चाहिए, खटखटाना चाहिए। What does mean asking is what is asking? तो परमेश्वर से मांगना, इसका मतलब क्या है? If you see all the three words ending with the word king. और अंग्रेजी में जो है ये तीनों शब्द का जो अंत है वो राजा है। So we are not asking from man, we are asking from the King of Kings and the Lord of Lords. क्यों ऐसा? क्योंकि जो है हम जो मांगते हैं या जो भी दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ कहाँ करते हैं? परमेश्वर के दरबार में। We are seeking from the King. क्योंकि हम उस राजा से अपेक्षा रखते We हैं। are knocking at the door of the King. राजा के दरबार के जो दरवाजे पर हम खटखटाते हैं प्रार्थना द्वारा। Only the one who came from heaven can take us back to heaven. और जो स्वर्ग से आया वो ही हमको जो रास्ता जो बता सकता है स्वर्ग जाने के लिए। If we have not been to heaven or no one has come from heaven, they cannot tell us the way to heaven. क्योंकि अगर कोई स्वर्ग से नहीं आया है तो वो हमको कैसे बताएगा कि स्वर्ग जाना कैसे है? But Jesus knows where he has come from. लेकिन यीशु कहते हैं कि वो जानता है वो कहाँ से आया। That's why he says so confidently, I am the way, I am the truth, I am the life. इसलिए वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। Christianity is never a religion. और इसलिए जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है, God has never made religion. क्योंकि परमेश्वर कोई धर्म नहीं चाहता है। But there is a relationship that man needs to have with God and God with man. तो परमेश्वर यही चाहता है कि सारे मानव जाति परमेश्वर के साथ एक जो मित्रता रखे।
The husband and a wife have a relationship. जैसे कि एक जो पति पत्नी के बीच एक जो मित्रता होती है, उनका जो रिश्ता होता है, The parents and the children have a relationship. माता पिता और जो बच्चों के बीच में एक रिश्ता होता है। So there are relationships in this world. दुनिया में अलग अलग प्रकार के रिश्ते हैं, But the greatest relationship that man has ignored is a relationship with God. लेकिन मानव जाति ने एक रिश्ता जो है अभी तक जो बनाया नहीं, वो जानती भी नहीं है, और वो है परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता। The moment we get this relationship right, all other relationships comes into the perfect alignment. और जब हम हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक कराते हैं, उसके बाद अपने आप बाकी सारे रिश्ते जो है अपनी अपनी जगह ठीक हो जाते हैं। So Jesus has come now to the sinners. He's coming to fix them up. तो इसी कारण से हम देखते हैं यीशु आते हैं ऐसे लोगों के पास ताकि वो उनको ठीक करा सके। See, the Pharisees were not, they were keeping the sinners away. क्योंकि जो फरीसी और शास्त्री लोग हैं वो कह रहे थे कि हम बहुत जो पवित्र जैसे हैं, तो ऐसे लोग हमसे दूर रहे तो अच्छा है। So who would be there really to help those sinners? तो फिर जो भटके हुए, खोए हुए, जिनको जो मदद की जरूरत है, उनको सही रास्ता कौन दिखाएगा? So the master has come down now. तो इसलिए यीशु अब आए हैं सीन में। And now they are worried because he's there saying this man receives sinners and eating with them. तो और ये लोग जो है, जो शास्त्री लोग जो है, चिंता में जो पड़ गए कि यीशु ऐसे लोगों के साथ क्यों जो बैठते हैं। Now if you see verse 4, he's telling a story to them. अब यहाँ पर यीशु एक कहानी जो बता रहे हैं ताकि ये शास्त्री लोगों को समझ में आए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। He's telling them a story. He could have told them something very straight, but he's telling them, listen, you all are also children, you all better listen to the story. तो ये लोगों ने जो कहा कि यीशु ऐसे लोगों से क्यों मिल रहा है, उनको जवाब दिए बिना उन्होंने कहा कि मैं एक कहानी जो उनको बताता हूँ, क्योंकि यीशु जानते हैं कि वो भी जो बच्चों की तरह ही है, उनको भी इसके बारे में जो सीख की जरूरत है। They knew the laws. हालांकि उनको सारे कानून जो पता है, They knew from the temple. क्योंकि वो जो मंदिर में सेवा करते हैं। You may know the laws, but you may not understand them. और इसीलिए जो है शायद कोई जो कानून को जानता है या जो मंदिर के कानून को भी जानता होगा, लेकिन एक रिश्ता परमेश्वर के साथ होना वो बिल्कुल अलग होता है। You know, when I was a Catholic, I knew the 10 commandments like this. जब मैं कैथलिक चर्च में था, तब मैं जो है जो 10 आज्ञाएं होती है, मुझे मुंह जुबानी उसको याद था। It says, do not rob, but I still went and did that. उसमें लिखा गया है चोरी नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं चोरी करता था। It says, do not lie, but I still went and lied. उसमें एक आज्ञा ये भी है कि झूठ नहीं बोलना, तो भी हम झूठ बोलते थे। It says, honor your parents. I would not listen to my parents. लिखा गया है अपने जो माता पिता का आदर करना, लेकिन मैं अपने माता पिता की हर आज्ञा को नहीं मानता था, Till I got one fadak. जब तक एक थप्पड़ न पड़े। So you understand, you may learn the laws, but you need to understand them. और इसलिए जो कानून का जो भी है, हम शायद उसका ज्ञान हम जानते हैं, लेकिन क्या हम उसको पूरी रीति से कर पाते हैं क्या? So Jesus is coming to make man understand. तो अब यीशु आए हैं जो मनुष्य को समझाने के लिए। So he's telling them a nice story now. तो वो समझाने की कोशिश में यीशु उनको एक कहानी कहते हैं। So he's telling them, if you have 100 sheep, तो वो कहते हैं अगर एक व्यक्ति के पास 100 ऐसे भेड़ है and one of them strayed away और उसमें से एक भेड़ अगर भटक कर अलग दिशा में चला गया and was lost in the wilderness, और वो जो है जंगल में खो गया, what would you do? तो वो पूछता है लोगों से, तुम क्या करोगे? Wouldn't you leave the 99 and go in search, or you'll say, अरे जाने दो, एक जाने दो? वो 99 जो इकट्ठे हैं उनको छोड़कर तुम वो एक को ढूंढने के लिए नहीं जाओगे क्या? What do you think? तुम क्या कहते हो? वो पूछते हैं उनसे। If you have so many children and one goes away, you'll keep them in the house, but you'll go and search for that one through your true father or through parents. जैसे कि एक जो परिवार में जो है बहुत अगर जो बच्चे हैं और उनमें से एक खो गया, तो आप क्या करोगे? जो बाकी बच्चों को घर में रखोगे और वो एक को ढूंढने जाओगे। See now, parents they got to maximum 3 children. Earlier it was like 15 children, 12 children, so many children. आजकल तो जो परिवारों में 2 है या 3-4 जो बच्चे होते हैं, लेकिन उन दिनों में जो 12-15 भी होते थे। So you understand? So now he's talking about the sheep. There were 100, one left, one was
gone astray. अब लिखा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ है, उनमें से एक ही जो है खो गया और 99 है उसके पास। And the shepherd would go to search for the lost sheep. और वो चरवाहा जो है वो 99 को छोड़ता है और वो एक को ढूंढने के लिए निकलता है। It means that he's searching till he finds. यानी कि वो चरवाहा ढूंढता है यहाँ वहाँ जब तक कि वो मिल ना जाए। That means God is showing his compassion towards his people. यानी कि परमेश्वर जो है अपनी करुणा दिखा रहा है अपने लोगों के प्रति। And that's why Jesus came, because he had compassion over mankind. और इसीलिए यीशु ने निर्णय किया कि वो धरती पर आएंगे क्योंकि उनके हृदय में करुणा था सारे मानव जाति के प्रति। He came to search that was lost. सारे मानव जाति के लोग जो खोए हुए हैं उनको वापस ले आने के लिए। And once the shepherd had found that sheep, और फिर जब वो चरवाहा उस भेड़ को ढूंढ लेता है, he would joyfully carry it home on his shoulders. वो भेड़ को जो है जो पकड़कर अपने कांधों पर रखकर घर ले जाता The है। shepherd would not beat the sheep. चरवाहा उस भेड़ को मारता नहीं था। Suppose if someone is lost someone, you go shout. कोई अगर यहाँ वहाँ चला जाता है जो बच्चे, तो हम उनको डांटते हैं, वहाँ क्यों जाए, वहाँ पे क्यों गए। But here the master goes and carries the sheep and put his shoulder. So nice. Arey, this fellow is not even hitting us. लेकिन Or put it on his shoulder. चरवाहा जो है जब खोया हुआ भेड़ वो ढूंढ लेता है तो उसको बड़े प्यार से जो है उठाकर अपने कंधों पे रखकर उसको प्यार से घर ले जाता है। And there's a joy that came on the shepherd's face. और उससे चरवाहा के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। Because one that was lost has now been found. क्योंकि जो खो गया था उसने उसको ढूंढ निकाला। You know, Jesus came to save us. इसी प्रकार से यीशु आए मानव जाति को बचाने के We लिए। were lost in sin. क्योंकि सारे मानव जाति जो पाप में खो गए। That's why when he came and we know him, we are transformed from darkness into his marvelous light. और इसीलिए जब हम यीशु के पास आते हैं तब वो हमको अंधकार से निकालकर उसकी रोशनी में रखते हैं। Verse 6 says, when you arrived, you would call together your friends. और इसलिए आगे लिखा है घर पहुंचने के बाद वो अपने सारे मित्रों को बुलाता है। You know, in this flat system, you don't know what is happening in the other house. फ्लैट सिस्टम में जो है हर कोई अपने अपने घर में होता है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है But नहीं पता in चलता। a village system, if something happens, everybody comes to know. लेकिन एक जो गांव में अगर किसी के घर में कुछ हुआ तो पूरे गांव को पता चलता है कि क्या हुआ। Not one day, but in 2 months, very fast, everybody will come to know what has happened there. तुरंत ही सबको पता चलता है कि फलाने घर में ऐसा हुआ। Now the children, they do not know much about how village is. They just know because we are in city. शहर के बच्चे नहीं जानते कि गांव में कैसा होता है, गांव का वातावरण कैसे होता है। So the shepherd would call together his friends. तो जो है चरवाहा अपने सारे जो मित्रों को बुलाता है खुशी से, Neighbors to rejoice. और आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है Be- और अपनी खुशी में शामिल Because होने। the sheep that was lost is now found. क्योंकि खोई हुई भेड़ उसको जो मिल गया है। So there is joy, there is happiness. तो भटके हुए या खोए हुए लोग जैसे ये भेड़ की तरह जब वो वापस आते हैं, परमेश्वर उनको ढूंढ निकालते हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं इस चरवाह की तरह। Well, in the same way, heaven will be happier over one lost sinner. और इसलिए लिखा गया है कि पूरा स्वर्ग खुश होता है, आनंदित होता है जब एक जो पापी अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है। When we return to God back. जब कोई व्यक्ति वापस अपने परमेश्वर के पास वापस आता है तो सारा स्वर्ग खुश हो जाता So है। imagine when we respond to God. तो जब हम परमेश्वर की बुलाहट पे जवाब देते हैं We are coming back to the family. तो हम परमेश्वर के परिवार में वापस आते हैं। You know, mankind is a family. सारे मानव जाति के लोग असल में एक ही परिवार है। We are a family that God has put on earth. सारे मानव जाति के लोग एक परिवार है जिन्हें परमेश्वर ने धरती पे भेजा। And we need to praise that God who made us. और हम सबको उसी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है क्योंकि उसने सबको बनाया। We need to glorify that God who took care of us. और वो परमेश्वर जिसने अब तक हमारी सुरक्षा की है, ख्याल रखा, उसकी स्तुति करना जरूरी है। Otherwise we'll be going round and round the garden.
नहीं तो फिर हम जो है घूम घूम कर वहीं पर आएंगे। So we do not understand certain things because we have not heard. और हो सकता है कि कुछ बातें जब हम जो सुनते हैं तो समझ में न आए, क्योंकि कभी कभी चीजें नहीं होती है हमारे लिए। But our God is a loving God. फिर भी हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है He cares for us. और वो बहुत ही चिंता करता है हमारी। We are not here by accident. और इसलिए हम सब यहाँ है इकट्ठे, ये ऐसे ही नहीं इकट्ठे हुए। Even my dates of coming here, everything was just by God's purpose. और जैसे आज हम यहाँ पर है, ये भी परमेश्वर ने ही जो तय किया था, और हमें भी नहीं पता था कि आज के दिन हम यहाँ पर होंगे। This may be a house. ये हो सकता है ये एक घर है, But when we worship God and Jesus is here, this is his like his palace. जब लोग इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, तो वो जो है परमेश्वर का दरबार हो जाता है वो समय के लिए। Today we got a lot of needs. और आज हम सभी के अलग अलग जो है जरूरतें हैं। There could be some person in some issue in their body. हो सकता है कोई शरीर में जो है किसी चीज की जरूरत है। Give a chance for God into your life. चाहे जरूरत जो भी हो, परमेश्वर को आज हम जो मौका देंगे हमारे जीवन में कार्य करने The का। moment we allow God to work in our lives, you will see a change in your own lives. क्योंकि जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि प्रभु आप करो, तब जो है प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। Even though they were tax collectors, they gave Jesus a chance to work in their lives. और जो है लोगों ने यीशु को जो मौका दिया उनके जीवन में कार्य करने के लिए, हालांकि शास्त्री लोग थे। So Jesus came to pay a ransom for us. तो जो वचन में लिखा गया है कि यीशु धरती पर आए हमारे पापों का दाम चुकाने के To लिए, save mankind from the impossible road to heaven. और जो मानव जाति जो पाप की वजह से खो गया था, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, उनको जो बचाने आए। And the reason he did that is by dying on the cross. और उसने ऐसा कैसे किया? क्रूस पर जाकर अपनी जान जो बलिदान कर दी। That's why it was a compassionate search first. और इसीलिए जो है पूरी करुणा से यीशु आए सब मानव जाति को पहले ढूंढ निकालने के लिए। And by dying on the cross, it was a costly search. और फिर जिनको उन्होंने ढूंढ लिया, उनको जो बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। It says, but we are saved with the precious blood of Christ. और इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। As of a lamb without blemish and without spot. क्योंकि वो ऐसा मेमना था जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था, इसलिए वो योग्य था। He was indeed foreordained before the foundations of the world. और दुनिया की नींव डालने से पहले ही ये जो तय किया गया था जो मानव जाति के हित के लिए, But was manifest in these last times for you who through him believe in God. लेकिन इन अंतिम दिनों में इसका प्रकटीकरण हुआ उन सभी लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, Who raised him from the dead. और उस पर विश्वास करेंगे जिसे उसने मृत से फिर से जीवित किया, And gave him glory so that your faith and hope are in God. और उसको महिमा दिया ताकि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर रहे। So today our hope is not on man. और इसलिए आज हमारी आशा किसी दूसरे जो मनुष्यों पर नहीं है, Our hope is in God. हमारी आशा हर चीज के लिए परमेश्वर पर है। Many a time we think what will be our future? बहुत बार हम चिंता करते हैं कि हमारा भविष्य कैसे होगा, How are things? The times are bad. क्योंकि आजकल के दिनों में खास करके जो समय बहुत जो बुरा है, Things are changing very fast. और जो है हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में जो चीजें जो बदलती है, But let us get secured in the things of God. तो हमारी सुरक्षा परमेश्वर में ही हो सकता है। Only God can turn our lives into something that is good. क्योंकि हमारे जीवन को जो बदलकर अच्छा उसको अगर जो बनाना है तो परमेश्वर ही कर सकते So हैं। today let God search our hearts. तो आज हम परमेश्वर को मौका देंगे पहले हमारे हृदय को जांचने के लिए। Whatever your need be, और जो भी आपकी जरूरत हो, just cry upon God. परमेश्वर को बुलाओ। I'm sure that God has taken note that we are having a meeting here. क्योंकि पूरा स्वर्ग भी जानता है कि
कि यहाँ पर मीटिंग हो रहा है। Whenever you call upon the name of the Lord, He is always there. क्योंकि वचन कहता है जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारे बीच आता है। I'll give you a secret. एक रहस्य आपको बताता If हूँ। you want God to hear you, there is one secret. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके शब्दों को सुने तो उसके लिए एक रहस्य है। You need to reach out to God by faith. आपको विश्वास से उसके प्रति एक कदम लेना है। Without faith, it is impossible to please God. क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Many people say, I have not seen Jesus. बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो यीशु को अपने इन आंखों से नहीं देखा। It is by faith. तो विश्वास की आंखों से It's देखा। not only encountering but experiencing the love that comes from God. और ये तभी होगा जब हमारा अनुभव यीशु के साथ होगा, आमना सामना जो है उसका अनुभव हम करेंगे, तब हम समझेंगे इस बात। The love that comes from God is not man's love. क्योंकि जो परमेश्वर का प्यार जो हमको छूता है वो किसी जो मनुष्य के प्यार के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। That love that comes from God has healing. क्योंकि परमेश्वर के प्यार में चंगाई मौजूद है। It has provision. उसमें उपलब्धि मौजूद है। It has protection. उसमें सुरक्षा मौजूद है। It has the goodness that comes from God. और परमेश्वर की भलाई भी है उसमें। It delivers the blessing. और परमेश्वर का प्यार से हमको आशीष मिलता है। One word from God can set us free. और परमेश्वर का एक ही शब्द काफी है हमको आजाद करने We के लिए। got a beautiful opportunity. और आज परमेश्वर ने हमको फिर एक बार जो मौका दिया है उसकी उपस्थिति में, Today is a new day. क्योंकि आज एक नया दिन है। But today's day, once it's over, will become yesterday. लेकिन आज का दिन खत्म हो जाएगा तो फिर अगला दिन शुरू हो So जाएगा। let us take the blessing what we have for today. तो आज के दिन के लिए जो आशीष ठहराई गई है वो आशीषों को लेंगे। I believe in the presence of God, the blessing is for all of us. Yes, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आशीषें आती है तो लेना हमारा काम है। I am taking the privilege that I am also going to get a blessing today. और इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जो आशीष होती है हम भी अपना हिस्सा लेंगे। I have seen numerous miracles beyond anything. और परमेश्वर की उपस्थिति से जो भलाई आती है हर क्षेत्र में हमने देखा है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को मिलता है। Because it's not man who does it, is God who performs it. क्योंकि वहाँ पर कोई जो मनुष्य कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर ऐसे समय में अपना काम करते हैं। And that is the supernatural things in God. और ये सब कुछ अलौकिक रीति से होता है, साधारण रीति से नहीं। See, the miracle worker is only Jesus. क्योंकि चमत्कार करना ये यीशु करता है। He only does the miracle. क्योंकि वो ही चमत्कार करते हैं लोगों के जीवन में। We have to just reach out to him. हमें सिर्फ अपना हाथ जो उसकी तरफ जो बढ़ाना है। See, the tax collectors were bad already. जो है चुंगी लेने वाले वो तो बुरा काम कर रहे थे। People said they are gone case. लोगों ने कहा ये तो गए काम। So they thought for themselves, I'm gone case, let's give a try. You know, Jesus, come, let's give a life, let's see what happens. तो उन्होंने भी सोचा होगा कि लोगों की नजर में तो हमारा कोई मूल्य नहीं, अब यीशु हमारे पास आए हैं, शायद कुछ बदलाव आए। People are calling us robbers. लोग हमको जो चोर कहते हैं, People are calling us names. लोग हमको अलग अलग जो नाम देते But हैं। let's see now, Jesus come, let's see if something can happen. तो अब यीशु हमारे पास आए हैं, शायद चीजें जो बदलेंगी। Was like a meeting, like a small meeting what they were having. छोटा सा जो मीटिंग जैसा था और यीशु उनसे जो मिल रहे थे। That also the scribes and the Pharisees were angry. और जब यीशु ये अच्छा काम कर रहे हैं तो शास्त्रियों को जो है गुस्सा आ रहा है। Dear people of God, whenever you're going to encounter Jesus, there will always be the enemy who will try to stop it. ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा जो है जो संपर्क यीशु के साथ होना होता है तब एक शख्स है जिसको बहुत गुस्सा आता है और वो है शैतान। And there are a lot of voices that will keep coming. और वो अलग अलग आवाजें जो है भेजता है लोगों को रोकने ताकि वो आशीष को न पाए। Why are you sitting with sinners? और इसलिए जो है वो जैसे शास्त्रियों ने कहा कि तुम जो पापियों के साथ क्यों बैठे हो। The voices will come in different ways. और ये आवाजें जो दुनिया से अलग अलग रीति से आते हैं, But he is real. लेकिन यीशु जिंदा है। Today I am speaking about the personality of Jesus. और ये है यीशु मसीह का व्यक्तित्व जो जीवित है। I am speaking about the good shepherd. वो हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसके भेड़ हैं। The one who came to save the lost.
यीशु आए खोए हुओं को वापस परमेश्वर से मिलाने के लिए। I was lost. मैं भी खोया हुआ था, I was gone. मैं भी, मेरा जीवन भी ऐसा था कि ये तो गया। My parents were good, हालांकि मेरे जो माता पिता बहुत अच्छे थे, but everything inside was empty. लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन था, ये मुझे पता था। But God had to find me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे ढूंढ निकाला, I cannot find myself because I myself is lost. क्योंकि मैं खुद खोया हुआ था, तो मैं रास्ता कैसे ढूंढ कर निकालूं? But Jesus came and He saved me. और इसीलिए यीशु आए मेरे जीवन में और उसने मुझे अंधकार से ढूंढ निकाला। And that's why for more than 25 years I am seeing great things in my own life. और जब से मेरा जो है संपर्क यीशु से हुआ है, जो 25 साल से मैंने परमेश्वर की विश्वसनीयता को हमेशा मेरे जीवन में होते देखा है। The greatest miracle is not healing. और सबसे बड़ा चमत्कार जो है चंगाई नहीं होती, The greatest miracle is not the best job. और सबसे बड़ा चमत्कार अच्छा जो नौकरी भी नहीं होता है, The greatest miracle is not cars and homes. या फिर एक अच्छा घर या एक जो बड़ी गाड़ी, ये नहीं होता। That will all come later on. I'm not worried also. ये सारी दुनिया की चीजें आएगी, उसके बारे में चिंता नहीं करनी। But the greatest miracle is having Jesus as the Lord and Savior. लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब यीशु हमारे जीवन का उद्धारकर्ता हो जाता है हमारे मांगने पर। When you have the greatest miracle, all the other miracles will come in subjective to the great miracle. और जब ये चमत्कार होता है, हमारा जो है अनुभव होता है यीशु के साथ, वो सबसे बड़ा चमत्कार होता है और बाकी सारे चमत्कार छोटे होते हैं इसके सामने। So today we got time. आज परमेश्वर ने हमको फिर एक बार ये मौका दिया, We've got this evening ये शाम हमको दी है, to reach out to the one who made us. ताकि हम अपना हाथ को बढ़ाए परमेश्वर की तरफ। In the beginning was the Word, और इसलिए लिखा है कि शुरुआत से ही वो शब्द था, and the Word was with God, और वो शब्द परमेश्वर के साथ था, and the Word was God. और वो शब्द It परमेश्वर, was made only through Jesus. क्योंकि यीशु के द्वारा ही सारी चीजों की रचना हुई। Without Him, nothing was made. उसके बिना कुछ किसी चीज की रचना नहीं We हुई। need to understand that it was Jesus. Many people think Jesus was there only 2000 years back. बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु 2000 साल पहले ही धरती पर आए, उसका अस्तित्व 2000 साल पहले से शुरू हुआ। Jesus is the very existence of God. लेकिन यीशु मसीह का अस्तित्व शुरू से ही था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। He didn't exist. वो 2000 साल पहले अस्तित्व में नहीं He आए, is the very existence. वो पहले से ही अस्तित्व में थे। So all things were made through Him. और इसलिए लिखा गया है वचन में कि उसके द्वारा ही सारी चीजों की रचना हुई, And without Him, nothing was made that was made. और सारी चीजों की रचना जो हुई थी उसके बिना नहीं हुई, In Him was life, क्योंकि उसमें जीवन था, and life was the fullness of man. और वो जो है जीवन सारे मानव जाति की भरपूरता है। What was the fullness was the light. वो भरपूरता क्या थी? वो प्रकाश, And the light shines in darkness. और वो प्रकाश अंधेरे में चमकता है, And the darkness could not comprehend it. उसकी वजह से अंधकार को जाना है। I'll tell you what is the meaning of what I said. अब ये सब जो हमने कहा इसका मतलब क्या है? You know, thank God we got lights. अच्छा है, यहाँ पे जो अलग अलग जो लाइट है, Okay, I'll explain to you this. If the lights are off, it will become dark. अगर सारे जो लाइट को ऑफ करेंगे तो अंधकार हो जाएगा। Now, to remove this darkness, तो उस अंधकार को निकालने के if लिए I get one big bag अगर मैं एक जो बैग ले लूं and try to collect darkness in that bag, और अंधकार को उस जो बैग में डालने की कोशिश करूंगा, still darkness is going to remain. तो हो जाएगा कुछ, वो अंधकार वैसे ही रहेगा। Everybody keeps reminding, take darkness in your bag. लोग सोचते हैं अंधकार को हम जो बैग में डालने की कोशिश करेंगे, It's not possible. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। You need the light. हमें प्रकाश की जरूरत है, So, लाइट की so जरूरत what you go to the switch. है। तो हम क्या करते हैं? जो लाइट के स्विच के पास जाते हैं। Very simple. बहुत साधारण है। The light is there in the world. वैसे ही जो प्रकाश दुनिया में है, He is already in the world. क्योंकि यीशु दुनिया में है। Only thing when you go home, what you do when it's dark, you just switch off on the light. घर जाने के बाद जो है अंधकार होता है घर में, तो जो है अंधेरे में हम जो लाइट का ऑन करते हैं तो प्रकाश आ जाता So है। when the light comes, automatically darkness goes.
और जब रोशनी आ जाती है जो रूम में, तो अंधकार अपने आप चला गया। You don't have to say darkness go now. आपको बोलना नहीं पड़ता कि अंधकार चले जाओ। So 9 watts will remove more darkness. 12 watts will remove more than that. जितना ज्यादा जो लाइट का पावर है उतना अंधकार चला जाता है। So you understand one thing, the more the light, the more the darkness will go. तो वैसे ही जितना परमेश्वर को हमारे जीवन में हम लाते हैं, अंधकार अपने आप उतना चला जाता है। It all depends on us individuals today. और ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर होता है, हर एक के लिए अपना अंधकार पर निकालने के लिए। Let the light of God shine inside our lives. और हर व्यक्ति को परमेश्वर को अनुमति देना है ताकि उसका प्रकाश आ जाए। So whatever your need, तो इसीलिए हम सभी की जो भी आज जरूरत है, the blessings of God will come upon our lives. पुकारने पर आशीषें आएंगी। Because we need to be in the presence of God. और उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है। And when one is saved, there is rejoicing not here on earth, there is more rejoicing in heaven. और जब हम ऐसा करते हैं, तो वचन कहता है कि हम जब सच्चे हृदय से समर्पण करते हैं और प्रभु को अपनाते हैं, उसकी रोशनी को अपनाते हैं, तो स्वर्ग आनंदित होता है। So when Sharon was born, तो जब शारीन का जन्म हुआ, her parents and relatives had a party. तो उसके जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने जो पार्टी किया कि उसका जन्म हुआ था। But the day she received Jesus as Lord, लेकिन जिस दिन उसने यीशु को अपने हृदय में लिया, she was born again. उसका नया जन्म हुआ उस दिन। That day I don't know whether they made party, but heaven had a party. जिस I दिन understand. उसने यीशु को अपनाया अपने हृदय में, उस दिन पता नहीं उसके जो माता पिता ने जो पार्टी किया होगा कि नहीं, लेकिन स्वर्ग में जो पार्टी हुई थी जिस दिन उसने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा। So many times we are born of physical birth than the spiritual birth. तो ज्यादा करके जो है, जो लोग अपना ध्यान जो है अपने जो है शरीर के जन्म पर जो मनाते हैं, शरीर के जन्मदिन The पर, spiritual birth will give the breakthrough. लेकिन असल में छुटकारा और जो बच्चा आत्मिक जन्म में ज्यादा आनंदित होना चाहिए। The moment you are saved, God will look after us. जिस दिन हमारा आत्मिक जन्म होता है, उसी दिन से परमेश्वर पूरा नियंत्रण लेते हैं हमारे जीवन में। Because God is now our Father. क्योंकि तब हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। Many times we say God, but today we can say Abba Father. बहुत लोग जानते हैं कि परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर को हम अब्बा पिता कह के भी पुकार सकते हैं। Let the light of God come into your lives. तो इसके लिए परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आज आ जाने दो। And let us enjoy the things of God for us. It is for us only. और जो आशीषें परमेश्वर ने जो है रखी है, हम आज वो लेंगे। Brothers and sisters, every blessing of God is for His people. ये हमें जान लेना है कि हर आशीष परमेश्वर ने अपने सारे बच्चों के लिए रखा है। Jesus says, I am the resurrection and the life. और इसलिए यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। I am the bread of life. जीवन की रोटी मैं हूँ। I am the only way to the Father. परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए मैं रास्ता हूँ, यीशु ने कहा। Very shortly I am going to pray. जल्दी ही हम प्रार्थना करेंगे। You just have faith. आप सिर्फ यीशु पे विश्वास रखो। If you have pain in your body, और अगर शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, any type of sickness, किसी भी प्रकार का बीमारी है, अगर whatever be your issue, चाहे जो भी समस्या है, whatever you need, चाहे आपकी जरूरतें आज जो भी है आप जानते हैं, just focus on God. आप अपना ध्यान परमेश्वर पर रखो उसको पाने के लिए। You trust God and have faith. और प्रभु पर आज विश्वास करो तो आपको मिलेगा। And you can test every word that I have said. और जो भी हमने कहा है उसको आप जो परख कर देखोगे, क्योंकि वो प्रभु का वचन है। Because whatever I am saying is from God's word. Nothing is of my own. क्योंकि ये सब हमने जो आपको बताया ये हमारे शब्द नहीं है, बाइबल में से हमने आपको And बताया। I am very confident if you have faith, things will happen. और हम जानते हैं कि आप विश्वास से पुकारोगे तो वो आपको उत्तर देंगे। Because
God is searching for His people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो चाहता है अपने लोगों को। And if God blesses you, He will bless your generation. और जब आप आशीष को स्वीकार करोगे तो आपकी जो पीढ़ी है उन पर भी आशीष अपने आप आती है। This is a good time. और इसीलिए ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत अद्भुत है। Whatever is your need, इसलिए जो भी हमारी जरूरत है, you can just close your eyes. हम अपनी आंखें बंद करेंगे Become will arise. और खड़े होकर अपना ध्यान हम सब प्रभु पर रखेंगे ताकि उससे हम पाए। I will just pray. और हम प्रार्थना करेंगे। I'll just give you some time. थोड़ा समय लेंगे, हम अपना ध्यान प्रभु पर रखेंगे, उसको पुकारेंगे दिल से। How the shepherd left the 99 and went after the lost sheep. जिस तरह वो चरवाहा 99 को छोड़कर वो एक खोए हुए को ढूंढने के लिए निकलता है। It really means that even that one was very, very, very special and important. मतलब कि वो एक भी बहुत ही मूल्यवान था प्रभु के लिए। I want to tell you, brothers and sisters, और इसलिए हम आज आपको बताना चाहते हैं that you are special to God. कि आप परमेश्वर की नजर में खास हो। God wants to bless you and bless your family. और परमेश्वर चाहते हैं आपको, आपके परिवार को आशीषित करने के लिए। He wants that your whole household would be blessed. और परमेश्वर चाहते हैं आपका पूरा घराना आशीषित हो। We got a new opportunity today. और ये पाने का आज मौका परमेश्वर ने हमको दिया। And in the presence of God, it is the best opportunity. और परमेश्वर के उपस्थिति में ये सबसे अच्छा मौका होता है। I believe that God is going to do His work. और यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में वो हम सबके जीवन में कार्य करेंगे। Continue to trust in Him. उस पर विश्वास करो इस समय। Continue to bless His holy name. उसके नाम को धन्य कहते रहो। As we sing a song, और हम गीत गाएंगे। say, Jesus, God, I trust in your name. आप अपने हृदय से अपना विश्वास प्रभु के सामने Call upon the name of the Lord and you will be saved. वचन कहता है उसके नाम को पुकारो और तुम्हारा बचाव होगा। God never forces anybody. परमेश्वर किसी पे भी दबाव नहीं डालता है किसी चीज के। God wants His people to come to Him willingly. परमेश्वर चाहते हैं कि उसके सारे बच्चे अपने इच्छा से उसके पास आए। And He wants to bless His people abundantly. और परमेश्वर तो रुके हुए हैं ताकि वो अपने बच्चों पर अपनी आशीषों को बरसा दे। As we sing this song, Jai Yeshu. हम इस गीत को लेंगे, जय यीशु। Come, sing this song. जय यीशु, मेरे होठों पे तू ही
we are here in your presence. पिता हम सभी यहाँ है आपकी उपस्थिति में मौजूद। Thank you, my God, that you always long for us, Lord. धन्यवाद पिता कि आप हमारी चाह हमेशा रखते हैं। And Father, Lord, I thank you, Lord, that you have brought your people before you, God. धन्यवाद प्रभु कि आज के दिन आपने अपने बच्चों को यहाँ इकट्ठा किया। Thank you, Lord, that you have a plan for each one and every soul in this place. और हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है प्रभु, हर एक के जीवन के लिए आपने योजना बनाई है। And Father, I thank you, Father. I ask you to show, Lord, the personality of Jesus to each one. और धन्यवाद देते हुए प्रभु हम मांगते हैं कि हर व्यक्ति को परमेश्वर आपका अनुभव हो जाए प्रभु। You know, if you want to make Jesus as Lord and Savior of your life, और आप अगर चाहते हैं दिल से कि यीशु आपके जीवन में आए, you want the Maker of heaven and earth to touch your life. आप चाहते हैं कि वो आपका उद्धारकर्ता बनकर आपको आज स्पर्श करे, I want you to just make this prayer after me. तो हम चाहते हैं कि आप इस प्रार्थना को पूरे दिल से कहें मुंह से। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूँ प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाओ। मैं धन्यवाद करती हूँ आप क्रूस पर गए मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। धन्यवाद यीशु, आपके लहू से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु, ये मौका आपने मुझे दिया। आप मेरे जीवन का राजा बन जाओ। मेरे उद्धार करता हो जाओ। मुझे सारे पापों से शुद्ध करो प्रभु। मेरे जीवन में परिवार में आ जाओ। और आप कार्य करो प्रभु। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। धन्यवाद प्रभु, मैं आप पे विश्वास करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। Thank you, Father. Father, in the name of Jesus, I speak your blessings right now. और पिता यीशु के नाम से हम आपकी आशीषें घोषणा करते हैं इस जगह पर। I'm going to just speak the blessings right now. If you want to receive it, just put forth your hands. हम Sign आशीषों of को faith. घोषणा कर रहे हैं। अपने हाथ को ऊपर करके विश्वास से आशीषों को पाओ अपने जीवन के। Father, in the name of Jesus, और पिता यीशु मसीह के नाम से I pray, Lord, that as they look up to you, हम प्रार्थना करते हैं जैसे हर व्यक्ति अपनी निगाहें आज आप पर रख रहे I हैं। speak the release now. आपकी ओर से आशीष हम घोषणा करते हैं। Every curse I break in the name of Jesus. हर श्राप को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम Every generation curse I break a hold right now over their lives in the name of Jesus. से। हर पीढ़ी से आने वाले श्राप को भी हम तोड़ देते हैं कि जीवन के ऊपर से यीशु के नाम You से। spirit of affliction, I rebuke you. बीमारी की हर आत्मा हम डांटते हैं तुम्हें। Every kind of oppression be gone in the name of Jesus. हर प्रकार का तकलीफ हम डांटते हैं यीशु के नाम से। Every curse be broken, every chain be broken in the name of Jesus. हर श्राप टूट जाए, हर जंजीर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से इस समय। If something is stopping you, let it be gone now in the name of Jesus. और जो भी चीजें आपको रोक कर रखी हुई है वो सारी चीजें आपको छोड़कर निकल जाए। I speak of blessings right now over your hands.
हम आशीषों को घोषणा करते हैं आपके हाथों में। Wherever you put your hands, it will be blessed in the name of Jesus. और जहाँ कहीं भी चीज पर आप अपने हाथ को डालोगे, आप सफल हो जाओगे। I speak the increase that comes from God. परमेश्वर की ओर से हम जो बढ़त की घोषणा करते हैं आपके जीवन के I लिए। speak fruitfulness into your lives. फलदायकता हम घोषणा करते हैं आपके जीवन के लिए। If there is any sickness in your bodies, I just rebuke that ailment now in the name of Jesus. और किसी भी प्रकार का जो Hallelujah. बीमारी हो, आपके शरीर में तकलीफ हो, तो वो इसी समय निकल जाए इन शरीरों में से यीशु के नाम से। Every organ in your body begin to receive the healing touch that only comes from God. इन शरीरों का हर एक अंग नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। Every organ function normally. हर अंग जो है शरीर का, वो यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाए। I speak your power, Lord. परमेश्वर आपकी सामर्थ को हम घोषणा करते हैं इन शरीरों में प्रभु। Father, I just release, Lord, things that only come from you. वो सारी आशीषों को हम घोषणा करते हैं जो आपकी ओर से आती है प्रभु। I say that the enemy is defeated. और हम घोषणा करते हैं कि शैतान हार गया है। God, I pray, Lord, your governance and the power of your Holy Spirit over their lives. और परमेश्वर हम आपका नियंत्रण के लिए प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं हर एक के जीवन के लिए जो आपके पास आया है आज की शाम प्रभु। Your word says, he whom the Son sets free is free indeed. आपका वचन कहता है कि आपके बेटे ने जिस किसी को भी आजाद किया है वो आजाद हो गया है। And I speak this freedom right now. और यही आजादी हम घोषणा करते हैं हर एक God, के I जीवन speak में। a blessing, Lord. और प्रभु आपकी आशीष है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए। I speak your goodness, God. आपकी भलाई मांगते हैं हर एक के लिए प्रभु। I speak your love, God. आपका प्यार से उनको भर दो प्रभु। I speak your comforting touch, Lord. आपकी सांत्वना उनको मिल जाए। If you are going through some pain, अगर आप किसी भी प्रकार का जो दर्द से गुजर रहे हो, someone has hurt you, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, someone has caused you any kind of harm, किसी ने आपको किसी भी प्रकार का जो दर्द दिया है, हानि किया है, it's maybe some years back, हो सकता है वो कुछ साल पहले हुआ हो, something has happened to you. या आपके जीवन में कुछ हो गया था। I want to tell you that God is healing you from inside right now. हम आपको बताना चाहते हैं आज परमेश्वर आपको आपके अंदर से चंगाई दे रहे हैं, God wants to bless you. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आपको आशीषों की बरसात आप पे डालने के लिए। If someone is stopping you from progress, और अगर कोई भी आपको रोक रहा है सफल होने के लिए, something is happening, या कुछ हो रहा है, there is financial stress, या फिर आर्थिक समस्याएं हैं, God wants to release you from that right now in the name of तो Jesus. परमेश्वर चाहते हैं ऐसी सारी बातों से आपको आजाद करने के लिए आज के दिन। If there is a mess in your life, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का गड़बड़ी है, God wants to fix that up. तो आज परमेश्वर चाहते हैं वो सारी चीजों को ठीक करने के You लिए। just say, God, I give you my heart. आप सिर्फ कहो प्रभु मैं अपना हृदय आपको देता हूँ, I give my life to you, Lord. मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूँ प्रभु। You work in my life. आप मेरे जीवन में कार्य करो प्रभु। I जैसे promise you, you will see the miracle. दिल से आपने ऐसे पुकारा प्रभु को आज के दिन, तो वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। At this moment, I speak the miracle right now. और इस समय हम हर प्रकार का चमत्कार घोषणा करते हैं आपके जीवन में In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। God is doing a work. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे God हैं। is doing a work. परमेश्वर आपके जीवन में इस समय कार्य You कर may रहे have हैं। not heard about Jesus much, हो सकता है आपने यीशु के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं but पाया, God knows you. लेकिन परमेश्वर आपको अच्छी रीति से जानते हैं You are special to Him. और आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत खास है। I want to tell you something encouraging. और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, God will never leave your hand as long as you trust in Him. और जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास रखोगे, परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित
करेगा There is an increase that will come over your life. और एक जो बढ़ोतरी आएगी आपके जीवन में। Father, I speak your blessings, Lord. और पिता हम आपकी आशीषों की घोषणा करते हैं इनके जीवन के लिए प्रभु। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Oh Father, we are touching your people, Lord. तो पिता धन्यवाद आप हर एक को स्पर्श करें आप कार्य करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Father. Thank you, my God, that you are doing a good work in our lives. धन्यवाद प्रभु आज हम सबके जीवन में आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। Let your light come. आपकी रोशनी हम सबके जीवन में प्रकाशमान And हो where every kind of darkness we disperse. और हर प्रकार का अंधकार हमारे जीवनों से निकल जाए। Thank you, Father. ओ धन्यवाद प्रभु We आप जो give कर रहे you हैं glory, honor, and praise. और उसके लिए महिमा स्तुति और आदर प्रशंसा आपकी करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।